Starting with gravitation, synopsis 2 lecture. Last time I had discussed synopsis 1 lecture, which was the basic synopsis of gravitation. Today I'll be doing all the types of sums of gravitation. Please pay attention. Type 1. Nobody's going to write. You'll listen, then you write. Type 1 का topic is change in potential energy. Change in potential energy. Now, what do you mean by this? This sum is very much asked in the MSTCT examination. A very trendy sum. What is it? Is the Earth? Mass M? Radius R? Where is the body of mass छोटा m? On the Earth's surface. Can I say its potential energy at this point will be PE1? It is taken up to a height h. How much is the potential energy at this point? PE2. Two types of questions can be asked. First question, find the change in potential energy, सीधा वाला. Or they can ask you, find the work done in taking this body from position number 1 to position number 2. Now they are asking you what is work done. You know work done is change in total energy. But यहाँ पर which energy is in the form of total energy? Potential energy, because it is not having kinetic energy, right? It is not moving. So work done over here is change in potential energy, which will be always PE2 minus PE1. Huh? Always be 2 minus 1. You know the formula for potential energy is minus GMM by R. No? Do you know this thing? Potential energy is minus GMM by R. So it will be minus GMM by R. Okay? Minus GMM by R. So this will be, change in potential energy is going to become, can I say minus GMM by R plus H. Minus of minus will become plus GMM by capital R. Are you understanding my point? So यहाँ पर it was R plus H and यहाँ पर it is R. So this will be this minus this. Can you say what is common? So change in potential energy, look over here, will be GMM. This will come first, will become 1 by R minus 1 upon R plus H. Can I take LCM? It will be GMM R plus H minus R. It will be R square plus HR. Okay. So this R and this R will cancel. It will be change in potential energy is going to become GMM H. Look at this, no? Can I remove from the denominator R square common? So this will be 1 plus H by R. If you know mathematics. GMM, H. नीचे से I remove R square common. So R square will come outside, will become 1 plus H by R. Na? Yes or no? But you know GM is GR square. GM is GR square. So change in potential energy is going to become GR square M R square H plus 1 plus H by R. Can I cancel the R square and R square? So change in potential energy is going to become mgh 1 plus H by R. The most important formula. अच्छा सुनो मेरी बात, ये शॉर्टकट है, ये मेथड है करने का. इन द एग्जामिनेशन अगर आपको सम आता है, आपके पास सिर्फ बहुत कम टाइम होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट इज देयर फॉर वन सम. ये सब आपने किया, आपको आंसर तो आ जाएगा, मगर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डूइंग दिस. अगर उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ा है उन्होंने तो ये मेथड से करेंगे. याद है हम लोग थियरी में भी यही मेथड से करते थे, मगर उसमें क्या होता है,
1 मिनट से ज्यादा लगेगा. आई एम गिविंग यू ओवर योर शॉर्टकट्स विच यू विल use and you will get the answer within 20 seconds. h का वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया. h कैन बी r सपोज, तो h का वैल्यू r अगर आप डालेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ना बेटा आपको. h का वैल्यू अगर 2r है तो आपने डायरेक्टली डाला, आपको आंसर आ जाएगा. समझ में आ रही है बात? अच्छा, स्कूल में हम एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करते थे, mgh. that is not the real formula. Real formula is this. In school we used to do mgh where h was very smaller than r. What was r का value? What is r का value? 6400 किलोमीटर. अच्छा, हम स्कूल में करते थे water falling from 10 meter height. अच्छा, 10 meter is very small in front of 6400 ना. So we neglect this number. So upon 1 plus 0 is going to become 1. So it will become what? mgh. So can I say if h is very much छोटा than r, the change in potential energy will become mgh. This is the formula which we used to do it in school. But actual formula is mgh 1 plus h by r, mgh 1 plus h by r, mgh 1 plus h by r. समझ में आ रही है बात? mgh 1 plus h by r. ये याद कर लो आप लोग. अच्छा, this g is छोटा g. Always remember the answer will come in terms of छोटा g. अच्छा, अगर आपको आंसर बड़ा g के टर्म्स में चाहिए तो you can use g is gm by r square. यही फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा. जी की जगह आप क्या डाल देना? gm बाय आर स्क्वायर. तो आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ बड़ा जी. यू हैव गिवन 4 आंसर ना. कोई आंसर बड़ा जी के टर्म्स में दिया रहेगा, कुछ आंसर छोटा जी के टर्म्स में दिया रहेगा. ये मैंने डिराइव किया छोटा जी के टर्म्स में. इफ द आंसर इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ बिग जी, पुट जी की जगह gm बाय आर स्क्वायर. फिर से करने का जरूरत नहीं है कुछ. बात समझ में आ रही है? एक एक टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इधर. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सम सुनिए बात इधर. टाइप 2. maximum height attained by the body. टॉपिक का नाम है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी. सुनो बात क्या हो रहा है. सपोज ये एक बॉडी है अर्थ के सरफेस पर. ये आ रहा है ना, ये एम है, ये छोटा एम. इसको मैंने ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी लेस देन वीई. What does VE stand for? Escape velocity. अच्छा, एस्केप अगर मैं दूंगा तो एस्केप कर जाएगा. किधर चला जाएगा भाई वो एस्केप करके? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0. बहुत सही जा रहे हो. मगर यहां पर इट इज लेस देन एस्केप, मतलब अर्थ के इन्फ्लुएंस में ही रहेगा. कुछ हाइट पर राइज होगा, कुछ हाइट पर राइज होगा. लेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बी h. एंड यहां पर जाकर वो रुक जाएगा, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0. समझ में आ रही है? वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में ही है. राइज हुआ कोई मैक्सिमम हाइट तक और रुक गया. क्वेश्चन में पूछा हाउ मच इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी व्हेन यू सप्लाई विद अ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी. बिकॉज़ लॉजिक इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी होना चाहिए. अगर एस्केप दिया तो इंफिनिटी पर, ग्रेटर देन एस्केप दिया तो भी इट विल गो टू इंफिनिटी बट मूव इन द. अगर पहला वीडियो आपने देखा है तो आपको सब समझेगा. ओके, please keep on revising the videos. That is for your understand, not for out. समझ में आ रही है बात तुम लोग को? ये देखना है तुम लोग को ये चीज. अच्छा, यहां पर देखो, कैन आई यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कौन सा एनर्जी इनिशियली हमने दिया? काइनेटिक. कौन से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल. So can I say kinetic energy is potential energy? Can I say decrease in kinetic energy is increase in potential energy? बहुत सही जा रहा हूं मैं? What is the decrease in kinetic energy? इधर kinetic energy तो 0 था, इधर kinetic energy कितना है? half mv square, where v will be less than ve. How much is the change in potential energy? यहां से फॉर्मूला उठाएंगे. अरे है ना हमारे पास mgh 1 plus h by r. So can I say mgh 1 plus h by r? m and m कैंसिल. तो v square will be 2gh 1 plus h by r. ये सुनो बेटा. अच्छा, उधर मल्टीप्लाई करो. मुझे क्या निकालना है? मुझे h निकालना है ना. तो कैन आई से v स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर h by r
इज इक्वल टू 2gh ना, तो h इधर से इधर आ गया, कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू h 2g माइनस वी स्क्वायर बाय आर। तो h क्या हो गया बेटा, v स्क्वायर 2g माइनस वी स्क्वायर बाय आर। ये आपको मिला मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। यू हैव टू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज ऑफ v। अरे v दिया है, कुछ भी दिया है भाई, v मिल जाएगा। 2g, g का वैल्यू कितना होता है बेटा 10, तो 10 ये डाल दो। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात सबको, क्लियर, एकदम कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर होना चाहिए, वरना नहीं आएगा तुम लोगों को। ये सब ये ऐसे रट्टा मार के जाएगी तो नहीं आएगा कुछ भी। अच्छा, टाइप 3 भी मैं सिखा देता हूं। टाइप 3 इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस थिंग। इसमें क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। सपोज ये अर्थ है, बॉडी इधर होता, आई ड्रॉप द बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ड्रॉप? ड्रॉप इज डिफरेंट फ्रॉम थ्रो। हाँ, थ्रो एज इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड। तुम टेरेस पे खड़े हो, तुमने एक पत्थर फेंका ऐसे, ड्रॉप किया मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। थ्रो किया मतलब ऐसे फेंका तुमने, तो वो अलग है भाई। तो वर्ड यहां पे क्वेश्चन में रहेगा ड्रॉप। अच्छा, गिरते समय वो गिरेगा 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 और यहां पर आकर अर्थ से टकराएगा विद सम वेलोसिटी v। Can I say it has fallen off from a height of h and it is striking the earth with some velocity v? Can I say this is replica of this sum? Arey, this is replica of this is replica of that. What is the v coming over here? V is coming as 2gh 1 plus h by r. Can I say v will be under root of, अरे बोलो यार, 2gh 1 plus h by r है। तो स्कूल में हम लोग v is under root 2gh करते थे। अरे यार, क्योंकि mgh लिया था ना हमने। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पुट हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, v is under root 2gh, याद है कि नहीं? मगर यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला पोटेंशियल mgh 1 plus h by r हो गया, तो v स्क्वायर v क्या हो जाएगा, under root 2gh 1 plus h by r. This is the velocity when the body is dropped and it will strike the ground with this velocity. एक एक बात क्लियरली आपको समझ में आ रही है? This is the velocity acquired while dropping. This is the maximum height attained by the body when the velocity supplied is less than the escape velocity. And this is the change in potential energy. Why change in potential energy only, sir? Because these particles which are there, their kinetic energy is how much? 0. अगर ये move होते तो मैं इनका kinetic energy भी consideration में लेता। What is kinetic energy for a revolving body? Gmm by 2r. याद है, भूल गए? मगर यहां पर नहीं है, तो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं लिया। होता तो मैं लेता। क्लियरली बात एकदम क्लियर हो गई? ठीक। अच्छा, सपोज ऐसे होता है कि हमने वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉडी एट इंफिनिटी। मतलब क्या हो रहा है? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द फील्ड। फील्ड में बाहर, फील्ड के बाहर जाकर वो मूव हो रहा है। अच्छा, उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए क्या शर्त है कि द स्पीड गिवन टू इट शुड बी ग्रेटर देन एस्केप स्पीड। ये सबको आता है भाई, ओके? तो ये हमारा अर्थ है, ये मास एम है, ये रेडियस आर है। सुन लो भाई, इधर मैंने इसको वेलोसिटी दिया ग्रेटर देन वी, और आई कैन राइट, इधर ध्यान दो बेटा, कैन आई से आई एम गिविंग अ वेलोसिटी k टाइम्स ऑफ v वे k इज ग्रेटर देन 1। अरे यार, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात यार? v इज ग्रेटर देन v ना, मैंने इधर एक टर्म डाल दिया k, वे k इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली v इज ग्रेटर देन v1 ना, v इज ग्रेटर देन v। क्या होगा? इट विल गो टू इंफिनिटी, its potential energy at infinity is what? 0. And this body is going to move with some velocity v dash which I don't know. भाई सिनारियो देख लो यार, मैंने उसको स्पीड दिया kv,
where k is greater than 1. So v is greater than v. When v is greater than v, it will go to infinity and it will move at infinity. The question says velocity attained by the body at infinity, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस में कितने स्पीड से वो चल रहा है, कितने स्पीड से वो चल रहा है. समझ में आ रही है ये बात? Can I use law of conservation of energy? Can I say total energy at this point and total energy at this point is the same? सुनो बात इधर. Can I say total energy initial is equal to total energy final? बात सुनना इधर. Total energy comprises of potential energy plus kinetic energy is equal to potential energy plus kinetic energy. Potential energy initial is minus gmm by r, है ना? Kinetic energy is half m v square. v दिया ना मैंने v. अच्छा, potential energy final is 0. Kinetic energy final will become half m v dash square. एकदम बराबर से देख लो यार. Can I cancel the m throughout? Can I multiply the whole equation by 2? तो ये हो जाएगा minus 2 gm by r plus v square is equal to v dash square. But you know s के velocity का formula is under root 2 gm by r. Under root 2 gm by r. तो what will be 2 gm by r? v square ना? So can I write this as minus ve square plus v square is equal to v dash square. So v dash will become under root of v square minus ve square. एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है बात? ये है फॉर्मूला v dash का. अच्छा, इसमें कैन आई प्लग इन के वी बिकॉज v इज के वी ना, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ऐसे v dash square will become के वी. तो k square ve square minus ve square. What is common? अरे बोलो यार. तो v स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? v k स्क्वायर माइनस 1. शॉर्टकट मिला भाई. k का वैल्यू आप डाल दो कुछ भी. k सपोज डबल है तो डबल डाल दो. डबल का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 रूट 3v. फिनिश्ड आंसर मिल गया सीधा. ये सब करने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रही है बात? ये सब एंड रिजल्ट्स आपको आना चाहिए, वरना आप नहीं कर पाए. क्लियर कट गेटिंग इट? के कुछ भी हो सकता ना, मगर के शुड बी ग्रेटर. अगर लेस देन हुआ तो इट विल गो टू सम मैक्सिमम हाइट, विल गो टू मैक्सिमम हाइट एंड देन स्टॉप ओवर देयर. वो तो कांसेप्ट आपको आता है. तो ये यहां तो 1 होना चाहिए या तो 1 से ज्यादा होना चाहिए. समझ में आ रही है बात? ओके तो ये तो अगर ये 1 हो गया तो देखो ना 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0. इसका मतलब याद है हम कहते थे इंफिनिटी पर जाके वो रुक जाएगा, ठहर जाएगा. दिस इज टाइप 4. वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी एट इंफिनिटी. आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 5. सुनो, okay. ये आजकल बहुत चल रहा है ऐसे सम्स. दे गिव यू f इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू n. How much is t proportional to? How much? हमारे दुनिया में, हमारे स्पेस में, हमारे मिल्की वे में, हमारी गैलेक्सी में f is inverse to r square ना. अरे f is gmm by r square यार. And t is proportional to r raised to 3/2 Kepler's third law of planetary motion. ये हमारी गैलेक्सी में है ना भाई. तो वो मैं बाहर गया, किधर बाहर चला गया भाई. तो उधर चेंज हो जाएगा ना. उधर हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ थोड़ी ओबे करेगा यार. इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर ओबे नहीं कर रहा है तो टी विल बी प्रोपोर्शनल टू समथिंग एल्स. समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, कैसे प्रूव करेंगे इसको? इसका रिलेशन इसके साथ में क्या है? सॉल्यूशन देखो. ये मेथड n का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा आपको. अरे n दिया है 2, n दिया है 5/2, n दिया है 3/2. आंसर में प्लग इन करो, आंसर आ जाएगा. मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दूंगा थोड़ा. ओके, सो कैन आई यूज द सॉल्यूशन? कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम? कैन आई से f इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू n. ये दिया था. कैन आई से दिस फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ना. अरे f is gmm by r square provide the necessary centripetal force. Yes or no? तो कैन आई से mv square is proportional to r raised to n plus 1.
अरे देखो ना यार, r रेस टू 1 r रेस टू। अच्छा m इज अ कांस्टेंट निकाल दो भाई, प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट निकाल देते हैं हम। तो कैन आई से v इज प्रोपोर्शनल टू r रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आता है नहीं आता, मैथ्स आता है ना सबको। v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r रेस टू n प्लस 1, सो v इज प्रोपोर्शनल टू r रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रही है? अच्छा मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे सर तो टाइम चाहिए। सो टाइम विल बी 2 pi r by v, याद है? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, सो टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू r by v, है ना? सो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू r by v। v की जगह कैन आई प्लग इन दिस? सो t will be proportional to r raised to 1 minus n plus 1 divided by 2। LCM ले लो इसका, 2 minus n minus 1 divided by 2। So t will be proportional to r raised to 1 minus n divided by 2। ये समझ में आ गई बात? अभी कुछ भी n दिया है, you take the n, you plug in over here, आपको आंसर सीधा आएगा। अच्छा if they ask you t square then, अरे तो स्क्वायर करो यार, r raised to 1 minus n, 1 minus n ना, स्क्वायर हो गया। सपोज n का वैल्यू आपको दिया है 5, तो यू कैन पुट, यू कैन गेट द आंसर। कुछ भी दिया है, n का वैल्यू आपको देखना है एंड यू कैन गेट द आंसर्स। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? क्लियर कट? टाइप 6 भी है स्टार्टिंग, टाइप 5 हो चुका है, टाइप 6 करेंगे। इधर ध्यान देना, इन एन elliptical orbit what happens, what to do? इधर ध्यान देना बेटा, हमने ये सिनॉप्सिस 1 लेक्चर में पढ़ा है कि इफ देयर इज एन elliptical orbit, look over here please, the sun is the earth, its distance is, let it be r1 and this speed is v1, and this distance is r2, speed भी v2। क्लियर? इसमें दो कंजर्वेशन लॉज लगेंगे, दो। सबसे पहला which I have taught you in the synopsis 1, that is law of conservation of angular momentum। L initial और L1 is equal to L2। L का फॉर्मूला याद है? mvr, but actual formula is mvr sin theta, but theta over here we take it as 90 because we consider that angle between v and r is how much? 90। so can I say mvr, so can I say mv1 r1 is equal to mv2 r2? m is constant now of the earth। अरे बाबा इधर भी मास सेम है, इधर भी सेम है, so मास तो निकल जाएगा। तो can I say v1 r1 is v2 r2? तो ये पहला फॉर्मूला हमको मिला, जिसके जरिए हम बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे। v1 r1 इज इक्वल टू, मगर जब एक इक्वेशन होता है तो कितने अननोन होते हैं? एक ही होता है। ये दोनों दिया रहा है, ये भी दिया रहा है, सपोज r2 पूछा है तो r2 मिल जाएगा हमको। बट सपोज थोड़े हाई लेवल के सीईटी के सम्स आते हैं जिसमें दो अननोन रहते हैं। दो अननोन रहेगा तो एक इक्वेशन काम नहीं चलेगा। तुमको मालूम है दो अननोन के लिए कितने साइमल्टेनियस इक्वेशन? दो चाहिए ना हमको। तो यू हैव टू यूज लॉ ऑफ conservation of mechanical energy also, or total energy. Can I say total energy at 1 is equal to total energy at 2? Total energy comprises of kinetic plus potential। इसका kinetic energy कितना है? हाफ mv1 स्क्वायर, और इसका potential energy is minus gmm by r1 ना बेटा, है। दूसरे वाले का टोटल एनर्जी कितना रहेगा? हाफ mv2 स्क्वायर, और उसका टोटल एनर्जी विल बी रहेगा माइनस gmm बाय r2। सबको समझ आ रही है बात? तो कैन आई कैंसिल द छोटा m, कैन आई मल्टीप्लाई बाय 2? तो ये हो गया v1 स्क्वायर माइनस 2 gm बाय r1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस 2 gm बाय r2। ये दूसरा इक्वेशन मिला ना मेरा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर दो अननोन है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा।
एक अननोन है, अच्छा ठीक है, ये इजी, v1r1 इज इक्वल टू v2r2। दो अननोन है तो ये भी लेना है, ये भी लेना है, और तुमको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है और आपको आंसर आ जाएगा इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और यहाँ पर हमने थीटा कितना लिया, 90। एक्चुअल फॉर्मूला इज mvr sin थीटा। समझ में आ रही है बात? टाइप 6। लास्ट टाइप विच आई एम डिस्कसिंग इज टाइप 7। सुनना, याद है सबसे पहला टाइप वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। सपोज आई टेल यू वर्क डन इन चेंजिंग ऑर्बिट्स, चेंजिंग ऑर्बिट्स मतलब क्या, देयर इज अर्थ, एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में पहले से घूम रहा है, उसको उठा के हमको वही सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट में रख देना है। कितना रेडियस है ऑर्बिट का, r2। तो इधर से इधर लेके जाने के लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड दिस टाइप? वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं था। ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, मतलब इसके पास टोटल एनर्जी है। व्हाट इज टोटल एनर्जी फॉर अ रिवॉल्विंग ऑर्बिट? What is the formula for total energy? What? अच्छा एक मिनट, what is the formula for binding energy for a revolving orbit? Gmm by 2r। माइनस नहीं आता है बाइंडिंग एनर्जी में, ओके? बाइंडिंग एनर्जी इज प्लस gmm by 2r। अच्छा, यू नो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इन अ रिवॉल्विंग ऑर्बिट इज माइनस gmm by 2r। ये बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? रिवॉल्विंग ऑर्बिट का टोटल एनर्जी मतलब के प्लस पी का सम ये है। अच्छा, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, विल बी टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1, सो विल बी माइनस gmm by r2। माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, gmm by r1। व्हाट इज कॉमन? इट विल बी 1 upon r1 minus 1 upon is the work done in changing the orbit, work done in taking it from 1 to 2 is gmm by 2 है ना? ओके, सो ये आंसर आया, समझ में आ रहा है? बाई 2 आ रहा है। क्लियर कट सातों टाइप आपको हो गए। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट्स, और ओके कुछ छोटे मोटे सम्स हमने सिनॉप्सिस 1 में भी डिस्कस किए थे। याद है एक सम किया था हमने जीरो इंटेंसिटी का, दो मासेस दिए हुए हैं, दोनों के बीच में एक ऐसे पॉइंट है व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग विल बिकम जीरो। एक्स का फॉर्मूला वाज d अपॉन रूट ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस 1। ओके, क्लियर है? We'll read the 29 question, we'll see what is given. Find the altitude, altitude का मतलब होता है height, at which acceleration due to gravity at height h is 25% of that of the earth. I want to find the height, okay? Where gh is given as 25% of g. 25% means 25 upon 100. Can I write 25 upon 100 as 1/4 of g? अरे नहीं समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, gh का फॉर्मूला you know is g big R square upon small r square. Can I say gh upon g is big R upon small r the whole square? But what is gh upon g given in the question? Gh upon g is 1/4. Can I take root on both sides? So it will become half r by r. But you know chota r is r plus h. So can I write this as half r plus h? So 2r is r plus h. So h will become 2r minus r, that will become r. And r ka value you know is how much? 6400 kilometer. A rocket is fired from the earth towards the sun. This is earth and sun. ध्यान दो इधर, sun है. At what point on its path the gravitational force on the rocket is 0?
ये दोनों है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस आई विल टेक, रिमेंबर इन सिनॉप्सिस 1 इज d. यहां पे फोर्स 0 है. अच्छा यहां से नापा गया है, तो कैन आई से दिस डिस्टेंस इज x, सो दिस डिस्टेंस विल बिकम d माइनस x ना. एंड जहां से x नापा जाता है दैट इज m1, एंड जहां से d माइनस x होता है दैट विल बी m2. ये सब शॉर्टकट लगाने के कंडीशंस आपको आना चाहिए, वरना कुछ भी नहीं कर सकते आप, शॉर्टकट नहीं कर सकते. हमको x पूछा है, x विल बी d अपॉन रूट ऑफ, वेरी गुड, m2 अपॉन m1 प्लस 1. बात सुन लो इधर, d is the distance between the earth and the sun, that is the radius of the orbit which is given 1.5 into 10 raised to 11. ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. m2 is the mass of the sun, mass of the sun, so mass of the sun is given as 2 into 10 raised to 30, and mass of m1 is mass of the earth, that is 6 into 10 raised to 24 plus 1. मेरी बात सुन लो, बात सुन लो इधर. x 1.5 into 10 raised to 11, देखो ना 2 3 6 होता है, 30 by 24 is 6, 10 raised to 6 का रूट is 10 raised to 3, ये 10 raised to 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1. अच्छा मेरी बात सुन लो कि भाई ये तो 1000 अपॉन समथिंग है एंड दिस इज 1. कैन आई से 1000 के सामने 1 इज वेरी छोटा, तो कैन आई निग्लेक्ट दिस नंबर? अरे यार थोड़ा, हाँ, तो दिस विल बी 1.5, रूट 3 का वैल्यू इज 1.732 into 10 raised to 11 minus 3 is 10 raised to 8. This will be approximately 2.5 आंसर. So आप देख सकते हो approximately 2.5 into 10 raised to 8 मीटर का आंसर यही है ना. दूसरे को आंसर मैच नहीं हो रहे, 10 is to 8 and 2.5, so nearest answer is this only. 3 particles of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of length a. So 3 particles are there, there is an equilateral triangle. सुनो हाँ, ये important question है. Mass m, mass m, mass m is situated with the side a. बराबर है, बराबर है, ठीक है. The only force acting on the particles is the mutual force of gravitation. इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स है, और इन दोनों के बीच में भी फोर्स है, बराबर है ना. F है, F है and F है, and both the forces are the same ना, F12 and F21 is the same, बराबर है ना. They form an action reaction pair, ठीक है. It is desired that each particle moves in a circle of radius r. अच्छा ये क्या हो रहा है, ये पूरा सिस्टम ऐसे गोल घूम रहा है. Everyone is moving in a circle of radius r. कितना रेडियस है सर्कल का? r. मतलब ये ट्रायंगल को मेंटेन करते हुए वो ऐसे गोल घूम रहा है. ट्रायंगल का डिस्टेंस a ही है, वो ये भी कांस्टेंट रख रहा है और पूरे सर्कल में वो गोल 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 सब लोग घूम रहे हैं विद वेलोसिटी v. I want to find the resultant force at the center. The resultant of the force at the center. अच्छा तुम लोग एक काम करो, मुझे फोर्स एट द सेंटर चाहिए, मतलब ये फोर्स ये सेंटर है ना बेटा सर्कल का. आई वॉन्ट दिस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंटर. क्वेश्चन देख लो, समझ गया तुम लोग को? क्वेश्चन देख लो, बराबर है. अच्छा कैन आई से दिस इज F between both of them, this is also the same F between both of them, and this F का combination will give you the resultant force at the center. अच्छा F का फॉर्मूला आने में दोनों के बीच में, F का फॉर्मूला will become gmm by r square. G m by r नहीं है बेटा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? a स्क्वायर. अरे दोनों के बीच में F कितना है बाबा? gmm by r स्क्वायर. समझ में नहीं आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? gmm by r स्क्वायर, तो gm स्क्वायर by a स्क्वायर. क्लियर? अच्छा मैं इसका डायग्राम बना दो. एक मास को देखो, एक मास की तरफ देखो, ये मास है ना हमारा, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, सही है ना? कितना एंगल है दोनों के बीच में बता सकता है कोई? 60. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो रहेगा 60 डिग्री ना, तो ये एंगल 60 डिग्री रहेगा.
अच्छा मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए यहां से, चाहिए ना रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा मैंने आपको पहले कुछ शॉर्टकट्स बताए हैं। क्या शॉर्टकट्स बताए सर? सुनो, अगर 90 रहेगा दो फोर्स के बीच में तो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी √2f। मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, अगर 90 डिग्रीज है तो फोर्स FF है, तो आंसर कितना रहेगा? √2f। अच्छा अगर 120 डिग्रीज है बेटा तो रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा? F ही रहेगा। और अगर मैंने बताया 60 डिग्रीज है बेटा तो कैन यू टेल मी हाउ मच इज द रिजल्टेंट फोर्स प्लीज? √3f। कितना रहेगा रिजल्टेंट फोर्स? ये आप याद करेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बहुत काम लगेगा आपको, हर वेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको काम लगेगा। 90 डिग्री विल टेल मी सर √2f, 120 डिग्री है सर दोनों f है तो आंसर विल आल्सो बी f। अच्छा सर 60 डिग्री है तो आंसर कितना रहेगा? √3f। तो ये दोनों के बीच में 60 है, तो अगर ये दोनों के बीच में 60 है तो हाउ मच विल बी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर? सो कैन आई से द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर, बात सुन लो, इज √3 टाइम्स ऑफ द f, but √3 times of f, and f is gmm by a square. So can I say g m square by is the resultant force which is acting at the center. समझ में आ रही है बात? अच्छा चार ऑप्शंस में से हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते थे, क्या आंसर सिलेक्ट करेंगे हम? √3 वाला, बिकॉज हमको मालूम है इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है? 60। तो अगर ये 60 है तो ये √3 क्वांटिटी रहेगा, तो √3 हमको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। सपोज इफ दे आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ईच एंड एवरी पार्टिकल, दे आर मूविंग विद v ना, इन अ सर्कल ना, दे वर मूविंग, व्हाट इज द वेलोसिटी पूछा है। यहां तक हमारा सीईटी का सम है। अगर हम जेईई मेन में जाएंगे तो सम थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी। कैन यू टेल मी वाज दिस फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर? And force acting at the center of the circle is called as centripetal force. So can I say this force provides the necessary centripetal force? Can I say this force is the force acting at the center? ना यही तो पूछा था यार क्वेश्चन में सीईटी में। Can I say force resultant provides the necessary centripetal force? So √3 g m square by a square will be mv square by r। बात सुनो, कोई टोको मत, इधर ध्यान दो बेटा प्लीज। आर है, आर ए नहीं है, इधर आर विल बी दिस रेडियस, ए इन दोनों के बीच में है बेटा, देख लो उधर, फिर से देखो, ये ए है, ये आर है ना, फर्क है। अच्छा दोनों, कोई बता सकता है ये एंगल कितना है? वेरी गुड बेटा 30, ये 30, ये ऐसे, समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बात समझ में, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये अगर a है तो ये हो जाएगा a/2। सुन लो एक मिनट, समझ में आ रही है बात? ये समझ में आया? मैथ्स है यार। कैन आई रिमूव cos 30 फ्रॉम हियर? So r will be a/√3। ये r लेके आप इधर डालेंगे, बिकॉज आई नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ ए। जो जेईई मेन में आंसर था वो आंसर ए के टर्म्स में था। √3 gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर mv स्क्वायर बाई r इज a/√3। समझ में आ रही है बात आपको? m और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये √3 ऊपर गया और ये √3 और ये √3 भी कैंसिल हो गया, ये a और ये a भी कैंसिल हो गया, तो v विल बी gm बाय a अंडर रूट ऑफ दैट। समझ में आ रही है बात?